Okay, very good evening to all of you. So today we will start with a new topic. We have covered the yesterday's topic, that is plant nutrition deficiency symptoms and all. So today we will be starting the new topic, and the new topic is your related to your NABARD bankable model projects. So total we will be covering this all the projects in total number of 3 classes, right? So today is the first class for that. So in 3 classes we'll see the different aspects of the project related to animal husbandry, or it may be related to the agriculture aspect. So today we'll take up the two important crops, that is mango and coconut. Since many questions are asked from the coconut, so we will focus on that also. And apart from this, since it is a season of mangoes, so first we'll start with the mango as per the NABARD project. Okay, so I think the screen is visible to everyone. Please type it yes or no so that I can continue. Is the yes? Okay, screen is visible. So we'll start with this today's session, and we'll start with the first crop, that is mango, as per the NABARD projects, right? So the first question is in front of you. When you will study the project of NABARD mango project, the first thing you will get is this information. So I do not wanted to leave the information, so I started with that. The answer has started coming. Ronak is saying C, 8 to 10. So the mango kernel is a seed part of the mango. Okay, it contains fat. It contains fat. Okay. So what is the percentage of fat in that? What is the percentage of fat in that? When it is saying D, 8, 10 to 12. Ronak is saying C. Shiva is saying C. Rishabh is saying B. So mixed response from all of you. That is B, C, and D. Manish is saying D. See, this question may be out of box, but since this was given in the NABARD model project, so I have picked the question. Maybe they can ask this type of sometimes they can ask some out of the box question. So I have picked the question so that in discussion, once you will see, you will remember. So the right answer for this, Himanshu is saying absolutely right. The right answer is 8 to 10. 8 to 10. Only first paragraph only you will get this information in the NABARD project. That is 8 to 10. It contains fat that is used for making cocoa butter. Okay, moving on to next question. India produces what percent of world mango production? India produces what percent of world mangoes production? Prasad is saying A, 40%. Vinith 40. Shiva is saying 40. Okay. Ronak is saying 48. Okay. A and C. So options, Rishabh is saying 55. Okay. So 40%. Anand is saying 40. Manish is saying 45. Okay, very good. Himanshu is saying 45. 45. Deepa is also saying 45. So one thing I would like to clarify regarding this question is that when we see the India's percentage, okay, in terms of world, so as per the NABARD project, the answer will be your 45%. As per the NABARD project, the answer will be your 45%. But as per APEDA, I think APEDA has more updated version, okay, updated information. So as per APEDA, that is 40%. 40.48 something, that is around 40%. You take it as round में 40% ले लेते हैं, right? तो आप जैसा ऑप्शन मिला उस तरह से टिक कीजिएगा. सो मोर बेटर आंसर विल 40%. अगर क्वेश्चन पिक किया जाता है प्रोजेक्ट से तो आंसर 48 होगा. अगर 40 ऑप्शन में नहीं रहता है तो सॉरी 45 आप कीजिएगा. 40 रहता है तो 40 will be the better answer because that is given in the APEDA website, and that is okay. Yeah, APEDA is 40%. That's why I'm saying Prasad that yes, 40 रहे तो 40 कीजिए. अगर प्रोजेक्ट से सीधा क्वेश्चन लिया जाता है तो 45 आंसर होगा. अगर 40 ऑप्शन में ना रहे तो दोनों ऑप्शंस आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे. जो रिसेंट डाटा है दैट इज 40. मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन मैंगोज इज, मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. राधा सिंह ए, यूएई. ऋषभ ए, शिवांगी ए, रौनक ए. It's coming A, USA. No, D. Tej is saying D, USA. UAE. Pulkit is saying UAE. So this is the only right answer. This is the only right answer. That is UAE. So जो हमारा एक्सपोर्ट है UAE के लिए वो सबसे ज्यादा है.
और परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है बाकी और यूएई की एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो इस वेरिएशन होने के चलते जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है हमारा कहाँ है, यूएई में है एज पर दी अपेटा वेबसाइट, ठीक है, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। नवाब मैंगोज आर ब्रांडेड मैंगोज ऑफ विच प्लेस, इनमें से किस प्लेस से रिलेटेड है नवाब मैंगोज जिसको कि ओडीओपी के तहत भी डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसको कि ओडीओपी के तहत भी डेवलप करने की बात की जा रही है। ओडीओपी, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज ओडीओपी, so everybody is coming out with option number C. Why? I think Nawab, you are correlating with city of Nawabs, I think, Prasad. Yeah. Somebody said, hey, Shivangi, Nuzvid is from Andhra Pradesh. It is mango ball of Andhra Pradesh. Okay, Nuzvid is mango ball of Andhra Pradesh, you can remember. Sometimes also said as mango ball of India also, Nuzvid. Nawabo ka shahar. Okay, Dhirendra. Shashank is saying C. So I expected that nobody will answer. I know that, and intentionally I have given the option as Lucknow so that everybody will confuse with that. The right answer is given by, I think Deepa is saying right. It's Saharanpur. Saharanpur is the right answer. Okay, you will find this information in APETA website. So that's why I picked this question. So right answer is Saharanpur. क्योंकि अभी ओडीओपी का ठीक है बहुत ही न्यूज में था और बहुत ही चर्चे में था ये स्कीम, दैट इज ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला। तो दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन कि मे बी फ्रेम हो जाए। सो नवाब इज रिलेटेड टू सहारनपुर, ठीक है, वहां के मैंगोज को ब्रांड करके बेचा जाता है, लखनऊ नहीं है इसका आंसर। ओके, मैंगोज आर कल्टिवेटेड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, ए वेरी जनरल क्वेश्चन और बेसिक एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है, इट कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक एग्रीकल्चर पार्ट आल्सो। E, tropical. B, E. Rahul is saying E. Prasad E. Tej is saying E. Jatin is coming out with E. Okay, most of them are giving it as E. So आप याद रखिएगा जो मैंगोज है वो हॉट एरियाज में कल्टीवेट होते हैं, तो अगर मैंगोज हॉट एरिया में कल्टीवेट होते हैं तो टेम्परेट कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो C इज आउट। C आउट हो गया तो D हो ही नहीं सकता, ठीक है। बचता हमारे पास A एंड B, A एंड B बचता है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट आंसर विल बी ए एंड बी, बिकॉज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों में गर्मी होती है और दोनों ही जगह मैंगो की कल्टीवेशंस होते हैं, तो राइट आंसर विल बी बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अर्लियर भी पूछे गए एग्जामिनेशन में, दे आस्क्ड दिस बेस्ड अपॉन द क्लाइमेट, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में जाओगे तो वहाँ पे जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है उससे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, राइस, व्हीट, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेस्ट पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन, बेस्ट पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन, ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें पता होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाओगे यू विल गेट द राइट आंसर। बेस्ट पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन, B, okay, B, A, somebody is saying A. Anand 6.5 to 8, B, Sandeep is saying B. Rishabh is also saying A. Chaitanya, okay, so mixed response from all of you. तो देखिए यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना है कि जो C एंड D ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशंस है, ठीक है, 8 के ऊपर जब पीएच होने लगता है तो दैट इज टू मच बेसिक, सो C एंड D कैन नॉट बी द आंसर, तो C एंड D नहीं है तो E भी नहीं होगा, बचता आपके पास A एंड B। तो A वाला कंडीशन जो है वो एसिडिक में चला जा रहा है, 5.5, I discussed in the some class also that 5.5 और उसके बिलो इट्स टू मच एसिडिक, ठीक है, एसिडिक क्लासिफिकेशन है, तो आंसर बचता आपके पास B, दैट इज ऑप्टिमम जो यहाँ पे है वो है 6.5 to 7.5, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज 6.5 to 7.5, okay, option number B. Nearby how many varieties of mango are cultivated in India? This question I have taken because in last some year you will see that they have asked about how many varieties of wheat are cultivated in India, like that some question was there, अगर आपको याद होगा तो, so that's why I have taken this question that how many varieties of mango are cultivated in India, ठीक है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट में डायरेक्टली दिया गया है तो मैंने पिक कर लिया है। Rahul is saying E, 3000, Anand is saying 1500, Chaitanya 1500, Anand is saying B, Rishabh is saying A.
प्रणव इज सेइंग बी, प्रसाद इज सेइंग सी वंस अगेन। सी देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली दिया गया नाबार्ड के प्रोजेक्ट में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम गलती ना करें तो इट्स बेटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है मिक्स्ड रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग आउट विथ रॉन्ग आंसर। The only some of the persons, I think only few answers are persons have given the right answer, that is option number B. B जो है वो करेक्ट है। अराउंड 1000 varieties of mango are cultivated in India। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वीट के भी उन्होंने कुछ पिछले पिछले साल जब भी हो पूछ रखा है ऐसा क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है, कि वीट की कितनी वैरायटीज है लाइक दैट। सो इन दैट कंटेक्स्ट ओनली आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज, ठीक है। 1000 है, 1000 में ओनली 20 वैरायटीज आर कमर्शियल, 1000 में ओनली 20 वैरायटीज आर कमर्शियल, ठीक है। वीट का ऑप्शन देख के याद आएगा सेड, मुझे भी याद नहीं है, उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट वट एवर वी कैन डिस्कस सो दैट यू कैन रिमेम्बर। अब आप भूलोगे नहीं, अगर इस वीडियो को और एक बार देख लोगे तो आपके जहन में हमेशा रहेगा, दैट इज 1000। 1000 इज अ वेरी गुड नंबर, ना इधर है ना उधर है, यू कैन रिमेम्बर इट नाउ वेरी प्रॉपरली। If Amrapali is grown out at a distance of 2.5 into 2.5, then the क्या होगा plant population? Who will answer it first? Deepa 1600 first to say Deepa. Age everybody is coming out with 1600. Amit, Sherlock, Manish, Navneer, Jatin, Manish, okay. Vinith 1600, very good, very good. तो ये जो है हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है, अमरपाली प्लांटेशन के लिए 2.5 into 2.5। If I asked you with for this per acre, if the question is changed to per acre instead of per hectare, then answer क्या होगा यहाँ पे? फोर थाउजेंड कैसे होगा? 4000 3800 4800। अच्छा ये बताओ पहले, ये 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, या फिर 1 हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 2.5। Sherlock has given the clue, that is you have to divide by 2। yes 2.5 एकड़, ठीक है, 2.5 एकड़। तो एकड़ छोटा हो गया ना, तो नंबर ऑफ प्लांटेशन विल कम डाउन। बढ़ कैसे जाएगा? घट जाएगा ना यहाँ पे। यस 640, अनमोल वेरी गुड। 640 2.5 से डिवाइड करना, एकड़ पे होगा तो घट जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हेक्टेयर है या एकड़ है, यू ठीक है ध्यान से देखना, यू सी इट्स एकड़ और हेक्टेयर, इसको देखने की आप कोशिश करेंगे और याद भी रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर पर एकड़ होता है तो 640 हो जाएगा, वेरी गुड, ओके। Which of the following is highly prized mango variety from Vadodara? बहुत ही फेमस है ये वैरायटी, कौन सा है ये? तेज इज सेइंग डी। एनीबॉडी फ्रॉम गुजरात? एनीबॉडी फ्रॉम गुजरात से कोई है तो वो बता सकता है। फेनिक्स इज सेइंग डी, केसर। केसर 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 इज अ वैरायटी ऑफ गुजरात, केसर इज अ वैरायटी ऑफ गुजरात, वेरी गुड। अनमोल डी केसर, दीपा केसर। सी the answer for this question will be, that's why I have given केसर also of the option। जो केसर है, ठीक है, ये केसर भी गुजरात से रिलेटेड है, एंड ऑप्शन नंबर ए दैट इज वनराज, वनराज इज आल्सो रिलेटेड टू गुजरात, ठीक है। बट वडोदरा यहाँ पे पूछा था, जो बड़ौदा जगह है वहां, वो रिलेटेड है किससे? वनराज से, ठीक है। वी फॉर वडोदरा, वी फॉर वनराज, आप ऐसे याद रखेंगे, राइट। So both are from Gujarat, but specifically the question asked from the Vadodara, the answer will be A, that is Vanraj, ठीक है। We say very easy to remember, now you will not forget। General spacing for mango cultivated in dry areas, general spacing, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके नाबार्ड वाले प्रोजेक्ट से ही ले रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर से नहीं ले रहा हूँ। So nothing deep in these questions, all are from NABARD projects only। C, Phoenix is saying C, 8 into 8। Prasad 10 into 10, 10 into 10, Tej is saying 10 into 10, Shashank B 10 into 10, ठीक है, right। So the right answer for this question will be your, that is 10 into 10 only। याद रखिएगा, ड्राई एरियाज में 10 into 10, अगर वहां पे, ठीक है, वेट एरिया होगा जहां इरिगेशन वगैरह होगा तो वहां 12 into 12 होगा, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे। ड्राई में क्या होगा, स्पेसिंग हम कम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ जो होगा रोबस्ट नहीं होगा।
जहां वेट कंडीशन होगा, क्योंकि वहां ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी रोबस्ट. So in that circumstance, you will be needing a much more space. So spacing for in wet condition will be 12 into 12. But if the question says in dry conditions, then the spacing will be 10 into 10. Ronak, very good. Pulkit, no, it's not 6 into 6. It's 10 into 10. Economic lifespan of mango tree. Economic lifespan of coconut पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में. So economic lifespan of mango tree कितना होगा? Pulkit is saying D. Sherlock B, Rishabh, Ronak B, Shiva is saying B, Prasad is saying D, Shashank is saying B, Shivangi is saying D, 40 years, Vikas is saying 25, Tej D, Himanshu D. Okay, so as per the project given, NABARD जो project दिया उसके हिसाब से ये 40 years ही है. The right answer as per that is 40 year only. ठीक है, more than 35, it's 40 year. So right answer is option number D, that is 40 year. कोकोनट का भी पूछा गया नबार्ड में पहले, तो मैंने सोचा कि उसी के कंटेक्स्ट में क्यों ना मैंगो का भी पिक कर लिया जाए जबकि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो राइट आंसर फॉर दिस इज 40 इयर्स. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैंगो स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो मैंगो के स्टोरेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? This question have been asked many times in the IBPS A4 examination. See, okay, C 13 degree, Rishabh 13, Prasad 13, Navneet is saying 13, Rahul 13, Pulkit is saying also 13. Okay, Ronak is saying none. Why Ronak? Why none? Himanshu is saying B 11. So the right answer for this question will be 13. याद रखिएगा 13, 1 3 13. Anand, it's 13, very good. Pawan, not 15, it's 13 only. ठीक है, 13 आप याद रखिएगा. ठीक है, 13 बहुत समय बहुत कोई इसे अनलकी नंबर भी मानते हैं, राइट? तो इससे आप याद रखिएगा जो मैंगो को हम स्टोरेज करते हैं एक अनलकी चीज से आप रिलेट कर लीजिए, अनलकी टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो आंसर विल बी 13 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, याद रखिएगा. सर हॉट कंडीशंस में रिक्वायर्ड, हॉट कंडीशंस में तो स्टोर नहीं होगा ना रौनक, वो तो पक जाएगा, इट विल राइप एंड इट विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो टेम्परेचर यहाँ पे स्टोरेज के लिए पूछा जा रहा है. ठीक है, तो स्टोरेज के लिए ऑप्टिमम होना चाहिए कि आम पके नहीं. ठीक है. Question number 13, Amrapali is a cross between which of the following? Very popular question and very famous question. I think everybody knows answer for this. A, Anand is saying B. A, B, A, B. Okay, A and B. 2 into 3 6 होता है, 3 into 2 भी 6 ही होता है. तो क्या डिफरेंस है A and B में? What is the difference between A and B? 3 into 2 is also 6. 2 into 3 is also 6. What is the difference? 2 3s are 6, 3 2s are 6. Pawan is saying male into female. First is female. Yeah, Shivangi told right that first is female. याद रखिएगा आप हमेशा, the first is the female parent, then next is the male parent. तो female into male होता है. ठीक है, female into male होता है. तो अगर आप parent बदल दोगे तो क्रॉस का नेम जो है, जो वैरायटी आपका डेवलप होगा, F1 जनरेशन दैट विल गेट डेवलप विल आल्सो चेंज. तो अम्रपाली को आप अदनान सामी के ऐसे नाम से याद रख सकते हो. मैंने अपने नोट्स में ADN करके शॉर्टकट भी दिया है. ठीक है, अदनान सामी लाइक दैट. तो ADN अदनान सामी, ADN अम्रपाली इज इक्वल टू दशहरा इंटू नीलम. अगर मैं नीलम इंटू दशहरा कर दूं तो वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम एक चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं. आनंद हैज गिवन द राइट आंसर. ओके, चार्ट के थ्रू देखते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप चार्ट में, everybody look into the chart. मलाइका, ठीक है, मलाइका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वेराइटी. ये हो जाता है नीलम इंटू दशहरी. देखिए अमरपाली अदनान से मैंने आपको बताया, अदनान D इंटू N है और ये उल्टा हो जाएगा इसका नीलम इंटू दशहरी हो जाएगा, तो दैट विल बिकम मलाइका. ठीक है, मंजीरा, मंजीरा इज रोमानी इंटू नीलम. आप अपना कुछ कोड बना ले, उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं. ठीक है, रत्ना जैसे है, NA है लास्ट में, N एंड A रत्ना, तो नीलम इंटू अल्फांसो. N से नीलम हो गया, A से अल्फांसो हो गया. अर्का अरुणा, अर्का अरुणा, अर्का पुनित, इन दोनों को क्लब करके याद रखिए, दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. अर्का अरुणा, A से स्टार्ट हो रहा है, अर्का फिर अरुणा, तो आप रखिएगा जो A से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वाले लेटर से इसका क्रॉस स्टार्ट होगा. ठीक है, A के बाद क्या होता है, B आता है, तो बंगनपल्ली इंटू अल्फांसो. ठीक है, बंगनपल्ली बहुत ही फेमस हुआ था GI टैग के चलते.
नेक्स्ट इज योर, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो अरुणा की जगह कौन आ जाएगा, पुनीत, और ये अल्फांसो आ जाएगा, यहाँ पे बंगनपल्ली आ जाएगा। लास्टली इज योर अर्का, अनमोल, अल्फांसो एंड टू जनार्दन। ये सारे वैरायटीज मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इन सारे वैरायटीज को दिया गया है। तो अगर एग्जामिनेशन वहां से क्वेश्चन पिक करता है तो ही कैन पिक एनी ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ऑल दी सेवन। तो इस चार्ट को आप एक कोड बना के याद रखिए, वेरी इजी टू रिमेंबर। आपको डीप साइंस में नहीं जाना है, बट कोड के हिसाब से आप याद रखने की कोशिश करें। एक मैं थोड़ा सा यहाँ से पूछना चाहूंगा, आई थिंक सम स्टूडेंट्स हु आर गिविंग राइट आंसर, दे कैन गिव मी द राइट आंसर, लाइक दीपा, आनंद कुमार। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली टू दीपा एंड आनंद कुमार। this is a cross, okay, Ratna is equal to Neelam into Alfonso। अगर मैं रत्ना को क्रॉस करा देता हूँ बंगनपल्ली से, अगर मैं रत्ना को क्रॉस करा देता हूँ बंगनपल्ली से, तो कौन सा ब्रीड बनेगा, कौन सा हाइब्रिड बनेगा? Which hybrid will be formed if I cross this hybrid already developed with the Banganpalli? Okay, not given, don't know sir। Okay, this is also an important hybrid। Okay, इसका नाम है सिंधु। सिंधु is a very important hybrid। सिंधु, सिंधु रत्ना को अगर बंगनपल्ली से क्रॉस कराया जाए तो इट विल फॉर्म ए सिंधु। तो सिंधु आप याद रखिएगा, ठीक है। Next question, question number 14, the earliest variety of mango, very important question, earliest variety of mango is, notes में दिया हुआ है, ये मैंने notes में दिया है आपको। A, Bombay green, Anand is saying A, anybody said it something else, Sandeep is saying A, Anmol, Navneer, Sherlock, Phoenix, Phoenix is a variety of Alfonso। Shiva is saying A, Bombay green, Ronak A, राहुल ए। ओके, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है ना, तो आम जब हरे होंगे तो हरा जो आम होगा वही सबसे पहले आएगा, इस तरह से आप याद रखिए। तो जिनको पता नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं दैट ग्रीन इज द कलर। तो कच्चे आम का ही कलर ग्रीन होता है, तो वही सबसे अर्लीस्ट वैरायटी होगा। तो बॉम्बे ग्रीन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज बॉम्बे ग्रीन, राइट। तो हम कुछ अर्ली, मिड और लेट वैरायटीज को देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। यहाँ ये आपके सामने चार्ट है, आप देख लीजिए, ठीक है। अर्ली वैरायटीज में आपके सामने ये है, बॉम्बे ग्रीन हो गया, बी फॉर बॉम्बे, फिर बी से बंगनपल्ली आ जा रहा है, हिम सागर आ जा रहा है। स्वर्ण रेखा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव गिवन बी फॉर बंगनपल्ली, बी फॉर बॉम्बे ग्रीन, ठीक है। बी वाले अर्ली पे आ रहे हैं। मिड में आ जा रहा है टोटापुरी, दशहरा, लंगड़ा, ये सब, ठीक है। और लेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट वैरायटीज में जनरली क्वेश्चन में इसी वैरायटी के बारे में पूछा जाता है। फजली बहुत हेवी साइज का ये मैंगो होता है, लेट वैरायटी है फजली, ठीक है। फजली इज दी लेट वैरायटी, इसी के बारे में पूछा जाता है। फजली आप याद रखिए, में अर्ली के ये दोनों याद रखिए, बाकी रखिए चाहे नहीं रखिए, इनसे आप याद रखिएगा तो इट विल वेरी इजी फॉर यू। यस धीरेन्द्र, सबसे लेट आता है और बहुत बड़े साइज का होता है, 1 मैंगो इज हाफ kg, इस साइज का आता है ये मैंगो, सबसे लेट आता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली फजली से ही रिलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेट वैरायटी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली वैरायटी। तो बॉम्बे ग्रीन और फजली आप दिमाग में रखिए। भागलपुर, यस यस यस। मैंगो वैरायटी यूज्ड फॉर कैनिंग पर्पस, मैंगो वैरायटी यूज्ड फॉर कैनिंग पर्पस। यस, सबका बदला लेगा फैजल, वेरी गुड विकास, अब आप नहीं भूलोगे आई थिंक, राइट, गैंग्स ऑफ वासेपुर। चलो, मैंगो वैरायटी यूज फॉर कैनिंग पर्पस, मैंगो वैरायटी यूज फॉर कैनिंग पर्पस, अल्फांसो, अल्फांसो। I think यहाँ पे how many of you are going through a comedy serial that is Tarak Mehta? How many of you are going through serial Tarak Mehta? In that you will generally found they are always saying about this mango, hapus, hapus. They are telling hapus. What is this hapus? Okay, hapus is Alfonso only. Hapus is Alfonso only. तो इसी से आप पता लगा सकते हैं, अगर हापुस ही अल्फांसो है तो आंसर ऑल होगा। अल्फांसो, हापुस, बादामी, ये एक ही वैरायटी है, ठीक है। अल्फांसो इज आल्सो कॉल्ड हापुस, अल्फांसो इज आल्सो कॉल्ड बादामी, ठीक है। तो अल्फांसो इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर कैनिंग पर्पस। इसके साथ साथ बंगनपल्ली भी हम यूज करते हैं कैनिंग के लिए, ठीक है। तो इसी से आप आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई, दैट इज ऑल। तो जनरली 2 varieties are used for canning purpose are Alfonso and Banganpalli.
बी एंड सी में जो आपको दिए गए हैं नाम वो है अल्फांसो के नाम ही, ठीक है। फिनिक्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अल्फांसो के ही नाम हापुस एंड बादामी है, ठीक है। एंड बंगनपल्ली इज आल्सो यूज्ड फॉर कैनिंग, सो आंसर विल बी ऑल। India is the dash largest producer of coconut. We'll now jump on to coconut. Mango is over. We'll now jump on to coconut. Badami and Alfonso is same. Somebody asked me canning. Canning देखो वही होगा जहाँ moisture percentage, sugar percentage वो सब calculate करके होता है कि कौन कितने देर तक storage हम कर सकते हैं, ठीक है। Somebody has switched on his mic. Please mute because आपको को दिक्कत होगी बाद में YouTube में से सुनोगे। Third, Dhirendra is saying C. Okay, 3. It's coming second. Pulkit is saying second. Rishabh is saying B. 5th to 9th something. Shiva is saying 5th or 9th. Navneet is saying C. सबसे highest कौन है? Highest you all might be knowing. Which country is the highest producer of coconut? Indonesia. Dhirendra, it's very good. Second में कौन आ जाता है? Second में कौन आ जाता है? Second में कौन आ जाता है? India आता है क्या second में? Philippines, yes, Dhirendra, it's Philippines. India, Philippines, Indonesia, Philippines. Next is India only. ठीक है. Third is India. Third is India. First Indonesia, second is Philippines, third is India. अगर मैं Indian state के बारे में पूछूं, which state is the highest producer of coconut? Which state is the highest producer of coconut? Everybody knows Kerala. Okay, very good, very good. So यहाँ पे third हो जाएगा, ठीक है. 17 का C will be the right answer. Optimum temperature for coconut cultivation. Optimum temperature for coconut cultivation. 27, 29. Sandeep 27. Rishabh is saying 29. Prasad is saying 29. Pranav is saying 29. Vikas 32. Vikas is saying 32. Okay. Shivangi 29. Pawan is saying 32. Vinith is saying B. 29. Sid is also saying B. See, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था बिकॉज इट में कंफ्यूज यू, जैसा कि विकास भी कंफ्यूज हो रहा था शायद, ही वाज सेइंग 32, द रीजन बीइंग सिड भी बोल रहे हैं 32, पवन इज आल्सो सेइंग 32, इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये साउथ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में गर्मी रहती है तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा इसकी ग्रोथ के लिए, यही लॉजिक लगा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे ये लॉजिक इस क्वेश्चन में फेल करता है, ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक थोड़ा सा फेल करता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। The right answer as per the NABARD project is 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका 27 है, प्लस उन्होंने बोला है 6 प्लस माइनस 6 8 डिग्री सेल्सियस, तो the right answer for this is A, that is 27, as most of you have given the answer. Question number 19, seedling age for coconut plantation. जो हम कोकोनट को प्लांट करते हैं ना, सीडलिंग होता है, उसके एज क्या होती है प्लांटेशन के लिए? सीडलिंग की एज कितनी होती है? 8 months. 8 months. Manish is saying 12. Dhirendra 8. Anand is saying 12. Deepa 18. Ronak is saying 1 month. One month का होगा क्या? अच्छा 10 months. Okay. Sid is saying 12 months. Fine. ओके तो राइट आंसर जो होगा ना ये लगभग 1 ईयर है। अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाए सीडलिंग एज फॉर कोकोनट प्लांटेशन, देन इट इज 12 मंथ। जो भी 18 मंथ बोल रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एडिशन कर दिया जाए कि वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो वो 18 से 24 मंथ हो जाता है। बट जनरल अगर पूछा जाए तो दैट इज 12 मंथ। अगर वेट कंडीशन में, वाटर लॉक्ड कंडीशन में पूछा जाए तो आंसर विल बिकम 18 to 24 months. So be clear with that. The question only asks, there is no specific circumstances or conditions. So right answer for this will be 12 months. ठीक है, याद रखिएगा। गंगबोधनम, ये वैरायटी है कोकोनट का, ठीक है, ये वैरायटी है कोकोनट का। ये किस टाइप का वैरायटी है? ठीक है, ये किस टाइप का वैरायटी है? There is a reason for picking this question. There is a reason for picking this question. एक रीजन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है।
dwarf. Guess. Yeah, guess. Please guess. B. Dwarf. Pulkit is saying dwarf. Dwarf. See, the reason being, जो जितने भी वैरायटीज के नेम दिए गए हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसमें से यही एक वैरायटी है जो कि सेमी टॉल है, याद रखिएगा। नहीं तो सारे वैरायटीज आइदर टॉल है या फिर सारे वैरायटीज आइदर डॉफ है। एक ही जो वैरायटी है वो सेमी टॉल है, दैट इज गंगबोधनम। तो नेम भी थोड़ा डिफरेंट है, टिपिकल साउथ इंडियन नेम। सो यू कैन रिमेंबर इट इज सेमी टॉल। सेमी टॉल वैरायटी है, ठीक है। एज पर द प्रोजेक्ट डिफरेंट वैरायटीज जो दिए गए हैं उसमें से यही एक वैरायटी है जो कि सेमी टॉल है, ठीक है। तो याद रखिएगा। ये है, देखिए, टॉल वैरायटीज। वेस्ट कोस्ट टॉल नेम से ही आप रिलेट कर लोगे, वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल, ठीक है। ये सब जो इस तरह से आपको वैरायटीज मान ले रिवर्स करके पूछ लिए जाते हैं, दे आस्क यू इन द रिवर्स मैनर, वेस्ट कोस्ट टॉल इज अ वैरायटी ऑफ, so you can relate which plant is tall, coconut is only tall, तो coconut will be the right answer, ठीक है। बेनालिम, लक्कादीव ऑर्डिनरी, लक्कादीव माइक्रो, ये आइलैंड से रिलेटेड है, तो आइलैंड में कौन सा प्लांट होता है, ठीक है, कोकोनट ही होता है। तो इससे रिलेट करके आप याद रखने की कोशिश करें। अगर सिर्फ वैरायटी का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा क्रॉप है, ये कैश्यू नट है या फिर कोकोनट है या फिर अरेका नट है, तो दीज आर ऑल वैरायटीज ऑफ योर कोकोनट ओनली। Oil content of coconut varies between, oil content of coconut varies between, जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कंटेंट कितना होता है कोकोनट में। A 40 to 50. This question is from your project only, NABARD project only. C 65 to 70. Okay, very good. Said Shivangi is saying A 40. Himanshu is saying A. So mixed response from all of you. So there's a confusion. So right answer I will say the oil content in coconut, ये 64% से लेकर 70% तक का रेंज दिया गया है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दैट इज 65 to 70% ऑयल कंटेंट होता है कोकोनट का, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। एक जो स्पेसिफिक वैरायटी है, आप देखिएगा एक या दो ही ऐसी वैरायटी है एज पर द प्रोजेक्ट जहाँ पे कि ऑयल 70% है। चंद्रकल्पा है शायद फर्स्ट वैरायटी ओनली, चंद्रकल्पा इज द हाईएस्ट, ठीक है, ऑयल जिसमें से निकलता है। एक BHC1 है, एक चंद्रकल्पा है, दो ही ऐसी वैरायटीज है जिसमें से कि मैक्सिमम ऑयल निकलता है, दे गिव अराउंड 70% ऑफ द ऑयल। चंद्रकल्पा एंड BHC1 एज फार एज आई कैन रिमेंबर, ओके, वंस यू कैन चेक दैट, चंद्रकल्पा एंड BHC1। इरिगेशन रिक्वायर्ड पर वीक इन कोकोनट इज, एक वीक में एक कोकोनट प्लांट के लिए कितनी इरिगेशन की जरूरत है। सी, रौनक इज सेइंग सी, गोविंदराज इज सेइंग बी, पवन ई 40 लीटर। No, see, the answer for this question is the answer for this question is your 40 लीटर। 40 लीटर है एक प्लांट को, ठीक है, एक वीक में 40 लीटर की जरूरत है। एक लीटर को, एक प्लांट को एक वीक में 40 लीटर, अराउंड इट रिक्वायर्स अराउंड 40 लीटर्स ऑफ वाटर। कोकोनट बिकम्स मैच्योर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ ओपनिंग ऑफ स्पैथे, जो उसका फ्लोरेसेंस होता है ना, if you have seen a coconut plant, the fluorescence of the flowering structure in the coconut plant is called spathe, ठीक है। उस स्पैथे के खुलने के बाद, वो फ्लावर जब खुल जाता है मान लो, तो कितने दिनों में ये कोकोनट डेवलप होता है आपका। ये आपके टेस्ट में भी मैंने बहुत से टाइम ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। संदीप इज सेइंग 12, शिवा इज सेइंग 12, ओके। ये सब नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। आप ऐसे भी जनरल भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें। Because if you see a coconut plant, a question can come in your mind, in how many days or years this coconut develops, okay. So it takes around 1 year to develop after opening of that spathe, that is fluorescence structure. So 12 months is the right answer for this question. Nut yield per tree after 10 year of planting. See, देखिए जब प्लांट आप कर देते हो तो नट यील्ड क्या होता है, वेरी करने लगता है, बट 10 ईयर के बाद इट गेट्स सैचुरेटेड, द नट यील्ड गेट्स सैचुरेटेड एंड ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपको मिलता है। तो कौन सा है एज पर द प्रोजेक्ट, कितना हो जाता है एक साल के बाद, कितना 10 साल के बाद कितना मिलता है आपको। धीरेन्द्र सिंह 70, मनीष सिंह 60, ओके, तेज सिंह C 70, ओके, पुलकित सिंह 60।
तो राइट आंसर फॉर दिस इज 70 ओनली। तो जो एल्ड है वो सैचुरेट हो जाता है 10 साल, 12 साल, 15 साल में भी अगर आप चेक करो तो दी आंसर इज 70 नट्स हम देखते हैं पर ट्री के हिसाब से, ठीक है। See, these are all natural things. This may vary from tree to tree. This may vary from place to place. But we are taking that project as a base because आपने देखा होगा पहले भी कि इन प्रोजेक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। तो आंसर आई एम आल्सो मार्किंग एज पर दैट प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है। So the after 10 year it gets saturated around 70 nuts per tree, right? Last question of today. Everybody knows, I think everybody will answer this because NABARD में पूछा जा चुका है क्वेश्चन एंड टेस्ट में भी मैंने बहुत सा टाइम पूछ लिया ये क्वेश्चन, so everybody must be knowing. C 60 years, everybody is coming with 60 years. तो थोड़ा कंपैरिजन में याद करो, मैंगो में 40 था, now it is to 60 years, right? So the economic lifespan of coconut tree is 60 years, आप याद रखेंगे, ठीक है। So ये जो दोनों मैंने क्रॉप्स कवर कर लिया आज, ठीक है, मैंगो एंड कोकोनट, इन दोनों को थोड़ा डिटेल में कवर किया बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, और अभी मैंगो का भी सीजन है तो मैंने मैंगो को थोड़ा ज्यादा कवर किया आज। तो these are all the important questions from the project. I will take 3 sessions. Okay, I will take 3 sessions for this model projects from NABARD. You will be able to answer each and every question after that. Okay, so that's all my dear friends from today. Any query if you have, 1 minute we have, you can ask. Okay, thanks for your feedback friends, thanks for your feedback, thank you very much, thank you very much, your appreciation means a lot to me. Okay, reports highlights. Okay, I will try, Amol, I will try. Tomorrow I have said that I will 3 sessions I will take with this model project. In 3 classes we will cover this all model projects. Okay, examination के time फिर आप rewind कर करके बार एक दो बार देख लोगे YouTube में तो then you can remember it very easily, I think, right? वीट वाला मैं बता दूंगा चेक करके, ठीक है, वीट वाला मैं बता दूंगा सेट चेक करके आपको, एक बार आप मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं बता दूंगा चेक करके। चलो, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, सो आई विल एंड द सेशन हियर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।